مالداری کا تعلق، تونگری اور سخاوت کا تعلق تو دل سے ہے، مال سے کہاں ہے؟ کتنے مالدار ایسے ہیں جو بخیل ہیں۔ اگر پاکستان کے سارے مالدار پوری تول کے اپنی زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پاکستان کے سارے قرضے بھی اتر جائیں گے اور پاکستان کا ہر فرد خوشحال ہو جائے گا۔ تونگری بدل است نہ مال است۔ تو جب سخی ہوتا ہے وہ ڈھونڈتا ہے دینے کے کچھ انداز، سخی ہمیشہ دینے کے انداز ڈھونڈتا ہے۔ وہ کوئی بھی اس کو راستہ، کوئی بھی منزل ملے، سخی ہوتا ہے اور وہ دل و جان سے سخی ہوتا ہے۔ جس کریم کے در سے سخاوت نکلی ہے وہ رب کتنا سخی ہوگا، جس اللہ کے در سے سخاوت نکلی ہے وہ رب کتنا سخی ہوگا، اور کتنا مہربان اور کریم ہوگا، اور کتنا کریم ہوگا، اور کتنا دیتا ہوگا اور دیتا ہے۔ اور سخی ہمیشہ کریم ہوتا ہے، اور کریم کسے کہتے ہیں؟ بغیر طلب کے عطا کیا جائے اس کو کریم ہی کہتے ہیں۔ ظلم کیا جائے، معصیت کی جائے، مقابلہ کیا جائے، نافرمانی کی جائے، بغاوت کی جائے، مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے اور پھر پکڑا جائے اور گردن سے دبوچ کے پوچھے ہاں کیا حال ہے، کہاں بھاگے تھے، اور پھر کھڑا کر کے کہے جا معاف بھی کیا اور جتنا کیا تھا خطائیں اس کا بدلہ بھی دیا، اور بدلہ کیا دیا؟ نیکیوں، عنایات، عطاؤں اور درجے بلند درجوں کی شکل میں اس کا صلہ دے دیا۔ اس کو کریم کہتے ہیں۔ دیا، سب کچھ دیا، اور سب کچھ دینے کے بعد کچھ بھی نہیں تیرے پاس، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ قرآن سارا کریم کے کلام سے بھرا ہوا ہے، اور قدم قدم پہ اس کریم کے دینے کے ایک انداز ہیں جو شاید میری آپ کی عقل اور سمجھ میں نہ آئے، اور جس پہ قرآن کھل گیا ہے اس پہ کائنات کے راز کھل گئے ہیں۔ دیکھو، قرآن کو دو چیزوں سے ہم سمجھیں، ایک مسائل سے، ایک فضائل سے۔ قرآن احکامات بیان کرتا ہے، اور قرآن سارے اخلاق کو، اخلاص کو بیان کرتا ہے۔ اس کو سمجھیں ایک فضائل کے اعتبار سے اور ایک مسائل کے اعتبار سے۔ اگر ہم نے قرآن کو صرف پڑھا بہت بڑی نیکی ہے۔ آج امت کا 90% سے زیادہ طبقہ ایسا ہے جو قرآن کو دیکھنا، پڑھنا، سمجھنے والے تو 1% ہوں گے، شاید 2% ہوں گے، اللہ کا مویشی معاف کرے، دعویٰ نہیں کرتا۔ پڑھنے والے فرمایا کہ یا اللہ میں قرآن کو اٹک اٹک کے اگر پڑھوں تو فرمایا اس کا دوہرا اجر ہے، ایک پڑھنے کا، ایک اٹک اٹک کے پڑھنے والی مشقت کا، اس کا دوہرا اجر ہے۔ قرآن پڑھنا، پھر قرآن کو سمجھنا، اس کے فقہی مسائل، اس پہ تفسیر، اس کو سمجھنا، یہ اس سے بڑی کائنات ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے میں قرآن کے مسائل بیان نہ کروں، علماء بیان کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں۔ ہر عالم کا اپنا ایک طرز اسلوب ہے، مطلب وہ چیزیں بیان کروں جو عمومی ہمارے ممبر پہ نہیں آتی۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ صرف میں ہی کرتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ عمومی طور پہ ہمارے ممبر پہ یہ چیزیں نہیں آتی کہ قرآن سے کس انداز سے نفع لیں، اور کون سا ایسے انداز ہو جس سے ہم قرآن کو اپنے لیے ہادی اور رہبر قیامت تک سمجھیں۔ آپ یقین جانیے قیامت تک آنے والے مسائل، کیونکہ جتنے وسائل بڑھ رہے ہیں اتنے خود مسائل بڑھ رہے ہیں۔ میں 1914 کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، 14 بھی گزر گیا، اس نے کہ جی اتنی ایجادات ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اس سے بھی اگلی ایجادات ہو گئی۔ وہ پہلے قیاس تھے، گمان تھے کہ سائنس اتنا آگے نکل گئی 1914 میں۔ وہ کہتے 2000 جب 14 آئے گا، ایک صدی آئے گی، تو ایک صدی کے بعد کتنی نسلیں ختم ہو جائیں گی، جو اگلی نسلیں ہوں گی ان کی زندگی ایک خوشگوار زندگی ہوگی، ایک شاندار زندگی ہوگی، ایک لاجواب زندگی ہوگی۔ وہ پلک چپکتے ہی ہر نظام ان کے سامنے ہوگا۔ اس موبائل کا، اس نیٹ کا جس میں بات کر رہا ہوں، اور اللہ پوری دنیا میں میری آواز کو اور میرے ہاتھ کے اس حرکت کو بھی پہنچا رہا، اس کا گمان ہی نہیں تھا، اور اس سے بھی کہیں آگے جو کائنات میں نظام ہے اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن ہو گیا۔ انسان تو سکھی نہ ہوا، انسان تو خوشحال نہ ہوا، زندگی کی ٹینشنیں، مسائل بڑھتی چلی گئیں۔ پہلے موبائل تھا، پھر موبائل پہ نیٹ، اور پھر اس کے بعد واٹس ایپ آ گیا۔ مجھے ہر بندہ کہتے ہیں جی آپ کے موبائل پہ واٹس ایپ ہے، میں کہ ابھی تک اس نعمت سے محروم ہوں۔ وہ جو واٹس ایپ پہ وقت دینا تھا وہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا دینے کی کوشش کروں میں۔ اب
ان سارے مسائل کا حل قرآن نے بیان کیے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو زندگی جتنی تنگ سے تنگ ہو جائے، مشکل سے مشکل ہو جائے، کیوں؟ علامات قیامت کا پورا ہونا لازم ہے۔ ایک بندہ آیا ایک اللہ والے کے پاس، اس نے کہا حضرت دجالی فتنوں کا ظہور ہوا، مسلمانوں پہ یہ ظلم و ستم، ساری دنیا میں یہ مظالم، ساری دنیا میں یہ حالات، ساری دنیا میں یہ واقعات بیان کرتے رہے کرتے رہے۔ ان درویشوں نے کہا چپ کر بھائی، خاموش رہے، خاموش ہو گیا۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے راستے نہ روک۔ کیا تھے تاجدار کندیاں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، خواجہ خواجگان کی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ چپ کر بھائی، عیسیٰ علیہ السلام دے آمن دے راستے نہ روک۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ علامات ساری پوری ہوں گی جو میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ جب وہ علامات ساری پوری ہوں گی تو اس علامات کے پورے ہونے کے بعد اللہ کے امر سے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جن کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ تو ظہور ہوگا، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم قرآن کی طرف اپنا رجوع رکھیں، مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، ناکامیوں کے لیے، زندگی کا نہ حل ہونے والا کوئی مسئلہ، اس کے لیے ہماری نظر فوراً قرآن کی طرف جائے۔ آج میں قرآن پاک کی ایک آیت بیان کرنے لگا ہوں جو ہمارے رات احباب نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سورۃ مائدہ کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 114۔ آپ میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اگر آپ کو یہ چھوٹی سی آیت یاد کرنی پڑے نا، کر لیں، کاغذ کے پرنٹ پہ لے لیں اور اس کو جیب میں رکھ لیں۔ وقتاً فوقتاً آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اس کو جیب میں سامنے اس کو چپکا دے۔ میں ایک جگہ گیا ایک گھرانے میں، وہاں کچن میں دعائیں چپکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے درس میں جو سنتے ہیں نا یہ کچن میں، کیونکہ مائی کا وقت زیادہ بیچاری کا کچن میں لگتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہاں میں ایسے ہی یاد کر لیتے ہیں، ہم سب گھر والے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کچن میں وہ دعائیں یاد کر لیتے ہیں، ہم نے یہ لکھ کے یہاں چپکا دی ہیں۔ آپ حضرات اگر اس آیت کو، جس کو میں یہ قرآنی دعا کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو یاد کر لیں، زندگی میں لطف آ جائے گا، مانگنے کا سلیقہ آ گیا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ یقین جانیے اللہ سے مانگنے اور اللہ سے لینے کا ایک انوکھا سلیقہ مل جائے گا۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ بس یہ چھوٹی سی آیت سورۃ مائدہ قرآن پاک میں۔ سورۃ مائدہ کس پارے میں ہے؟ 26ویں پارے میں، 6 پارے میں، آیت نمبر 114۔ بس یہ چھوٹی سی آیت۔ جب بھی کسی کھانے کی ضرورت ہو، پینے کی ضرورت ہو، لباس کی ضرورت ہو، سواری کی ضرورت ہو، رزق کی ضرورت ہو، صحت کی ضرورت ہو، عزت کی، عافیت کی، عطاؤں کی، اس کی کریمی کی، کوئی بھی ضرورت ہے، اس کو پڑھ کے 11 بار آسمان کی طرف ہلکے سے پھونک مارتا، بس ایسے دیکھیں عجب اس کی قبولیت ہے، انوکھے قبولیت کے اس کے اندر راز ہیں۔ جتنے بھی اکابر، صلحاء، محدثین، مفسرین، صالحین، ان سب سے یہ منقول ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ آپ کو اچھا دن میں جتنی دفعہ ہو سکے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، مولا فلاں چیز عطا فرما، ایک دل میں تصور پیدا ہوا حلال چیز کا، یا اللہ وہ تیرے خزانے میں ہے، پیسے نہیں پلے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سن ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو۔ مولا میرے پلے کچھ بھی نہیں، میں خالی ہوں پر تو خالی نہیں ہے، مولا میں بھرا ہوا نہیں ہوں، تو بھرا ہوا ہے، اور اللہ میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے دے دے۔ اب وہاں پر کھڑے کھڑے یہ 11 بار آیت پڑھ لی، اپنے کام میں مشغول ہو گیا، پھر خیال آیا کہ مولا یہ چیز چاہیے، پھر آیت پڑھ لی، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ٹرین میں جا رہا تھا، وہاں مجھے کھانا باندھ کے دینے لگے، اس وقت پیٹ بھرا ہوا تھا، پھر جو ٹرین کے اوپر سیڑھیاں چڑھی، بڑا لمبا پلیٹ فارم تھا، ایک پلیٹ فارم سے نکلا، پھر دوسرے سے نکلا، پھر تیسرے سے نکلا، پلیٹ فارموں میں نکلتے نکلتے چند گھونٹ جو پانی پیے، کھانا نیچے چلا گیا۔ اب لمبا سفر رات کا، میں کیا کروں، کیسے کروں کہ یہ اب
रात के लंबे सफ़र में भूख लगेगी, नींद नहीं आएगी। बर्थ भी मैंने करा ली थी कि दिल में ये ख्याल था कि सोता हुआ जाऊंगा। मेरी तरफ देख रहे हैं? नहीं देख रहे। दिल में ये ख्याल आया कि सोता हुआ जाऊंगा। अब क्या करूं? फिर ख्याल आया कि ये बाहर से रोटी ले लूं। कहा नहीं, स्टेशन वाली रोटी तबीयत नहीं चाह रही। अब क्या करूं? मैंने कहा मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया है। अपनी बर्थ में बैठा नीचे और ये पढ़ता रहा और दिल में कहने लगा मौला मैं सवाल नहीं करूंगा, पर तुझसे सवाल जरूर करूंगा। खिला और पिला और अपनी रहमत से खिला। कहने लगे अगले स्टेशन पे बर्तें खाली थी, कुछ लोग आए, उन्होंने चेक किया, हाँ ये बर्तें हैं। उसके बाद सामान वगैरह रख के खाना खोला, जी खाना खाएं। हमें कहने लगे आप भी खा लें। मैंने कहा नहीं आप खाएं। कह रहे कमाल है, आप यहाँ हमारे यहाँ बैठे हैं अकेली, बाकी सारी बर्तें हमारी हैं, अकेली आपकी, आप कैसे ना खाएंगे? आए हमारे साथ खाएं। इसरार किया। कहा जो दिल में तमन्नाएं थी, ऐसा खाना हो, ये हो, वो सब कुछ मौजूद पका हुआ मेरे सामने आ गया। हम एक सफर में जा रहे थे, एक साहब मेरे साथ थे। मुझसे वापस में कहने लगे इस आयत की वजह से मैंने देसी भुना हुआ मुर्ग खाया। वो कैसे? कहने लगे मेरे जी में था कि मैं मुर्ग जो है वो लूं और मैं खाऊं। मैंने कहाँ से खाऊं? मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया वक्तन फवक्तन। पढ़ते एक जगह जो दावत पे गए और देखा तो आगे वही पड़ा हुआ है, और खास तौर पे मेरे आगे उन्होंने उठा के रख दिया और मैंने खा लिया। रिस्क मिलता है, दौलत मिलती है, खाने मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, घर मिलता है, जिंदगी की जरूरियात मिलती हैं इस आयत की वजह से। और रिस्क रूहानी के दस्तरखान वसी हो जाते हैं। एक रिस्क जिस्मानी है, ये खाना, ये पीना, ये मशरूबात, ये फल फवाकेहात, ये सारा रिस्क जिस्मानी है। ये लिबास, ये घर की ज़रूरियात, ये ज़िंदगी, ये सारा का सारा रिस्क जिस्मानी है। एक रिस्क रूहानी है। रिस्क जिस्मानी के करते करते हमारी तबीयत ये हो गई कि हम सुस्त हो गए। अब देखें, अभी सुबह रिस्क जिस्मानी लिया है, सुबह की हालत गनूदगी की है, ये रिस्क जिस्मानी है। और एक रिस्क रूहानी है, और रिस्क रूहानी भी अर्श से आता है, वो अर्श से मिलता है। ला हौला, इसमें रिस्क रूहानी की ये चाबी है, ये जो मैं बयान कर रहा हूँ, और राज इसने अल्लाह ने रख दिया हमें समझाने के लिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नेकी की तौफीक हम देते हैं, ला हौला वला कुव्वता, और गुनाहों से बचने की कुव्वत भी हम देते हैं। तू अपनी मर्जी से कर नहीं सकता, अपनी मर्जी से बच नहीं सकता, हम ही देते हैं। तेरे पास कुछ नहीं है, हम देते हैं। मालूम हुआ कि इस आयत में रिस्क रूहानी और रिस्क जिस्मानी अल्लाह ने रख दिया है। तो इस आयत के जरिए, सूरत माइदा की इस आयत के जरिए रिस्क रूहानी मांगे अल्लाह से। मौला दे रिस्क रूहानी दे, मौला दे रिस्क रूहानी वाफिर दे। अच्छा, जब रिस्क रूहानी के फैसले हो जाएंगे, गौर से समझेगा, फिर अल्लाह गैब के खजाने से ऐसे दस्तरखान बिछा देगा। और दस्तरखान उस वक्त बिछता है, ये मेरी तरफ देख के बात सुनिएगा, नीचे नहीं। दस्तरखान उस वक्त बिछता है जब अंदर भूख होती है। दस्तरखान बिछा हुआ हो और अंदर भूख ना हो, कभी फायदा नहीं होगा। दस्तरखान बिछा हुआ हो और अंदर भूख ना हो। जब भूख होती है, नींद न जाने टूटी खाट, प्यास न जाने धोबी घाट, भूख न जाने झूठा भात, इश्क न जाने जात। इश्क न जाने, जब भूख होती है फिर झूठा भात भी अच्छा लगता है। जब अर्श इलाही से रब रिज़्क़ रूहानी अता फरमाएगा, फिर रूहानियत की भूख लगेगी। नमाज, तस्बीह, सदकात, किसी इंसानियत की खिदमत, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक, फिर अल्लाह से ताल्लुक और अल्लाह वालों से ताल्लुक जोड़ने के लिए अपने घर को, अपनी मंजिलों को छोड़ना, दूर परे से आना। और घर में मसारियाँ हैं, यहाँ चटाइयाँ हैं, लेकिन उसके मज़े मसारियों से कहीं ज़्यादा आ रहे। ये समझ लें इसको भूख लगी है। लाहौर के किसी कोने में घर है, वहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, ये भूख ने इसको पहुँचाया। और पड़ोस में करीब कोई आया कोई नहीं आया, उधर भूख नहीं थी, इसको भूख लगी, ये दूर परे से आया और मंजिलों को इसने करीब समझा। हालांकि जिनको भूख नहीं थी मंजिलें उनके करीब थी, लेकिन उनको भूख नहीं थी। ये अर्श से रिज़्क़ रूहानी आपको मिला। अगर रिज़्क़ को बढ़ाना चाहते हैं, इस आयत के साथ दोस्ती करें। और रमज़ान के इफ्तार में, जब इफ्तार में सारे वादे होते हैं और इफ्तार के सारे फैसले हैं कि आओ मैं इफ्तार में तुम्हारा साथ दूंगा,
इफ्तार में सारे वादे और इफ्तार में सारे वादे होते हैं और हैरत अंगेज वादे होते हैं कि आओ इफ्तार में तुम्हारा साथ दूंगा और जो मांगोगे दूंगा, जो चाहोगे पाओगे। तो क्यों ना हम इस आयत के साथ और दुआएं भी जो करनी है कर लें और जो मांगना है जरूर मांगे। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, इस आयत को इफ्तार के वक्त जरूर मांगा करें, जरूर मांगा करें। और अगर किसी को याद नहीं है, आज का दिन मौका है, आज का दिन कुरान पाक उठाएं, किसी पढ़ने वाले से पढ़ें, समझें और इसको बोलना, इसको पढ़ना शुरू कर दें, इसको याद करना शुरू कर दें। जब ये याद हो जाएगी फिर ये दिल से निकलेगी और इसको पढ़ें बड़े यकीन से, ठहर ठहर के, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना, ये दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से इसको पढ़ें और पूरे यकीन से इसको पढ़ें और अपने मकासद का तस्वुर करके, या अल्लाह मेरी ये मुश्किल, या अल्लाह ये मेरी ज़रूरत, या अल्लाह ये मेरी चाहत, अल्लाह गैब के ख़जाने से मुझे दे, अल्लाह मेरी नस्लों को दे, या अल्लाह ये दुनिया की चीज़ दे, ये रिस्क दे, ये माल दे, ये अताएं दे। जब ये अल्लाह के ख़जानों से मांगेंगे इन बोलों के साथ, उधर रहमत इलाही मुतवज्जह होगी। और इस बोल में एक और राज है, इस बोल में एक और राज है, सुनिएगा। अल्लाह ने दुआ भी दी है, अल्फाज भी खुद दिए हैं, औकात भी खुद दिए हैं। अल्फाज किसके हैं? अल्लाह जल्ल शानुहु के। और सहरी का, इफ्तारी का वक्त किसका है? वो भी मेरे रब का दिया हुआ है, वही की बरकत से। अल्फाज भी अर्शी हैं, औकात भी अर्शी हैं और रोजेदार की दुआओं के साथ कबूलियत की मोहरें हैं और रोजेदार के साथ आमीन करते हुए दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हैं। अल्लाह अकबर। इस आयत को लाने, ये आयत कलाम अल्लाह का, लाने वाले जिब्रील, सीना है मेरे आका मदीने वाले का, और बोल मुबारक आपकी जुबान अत्थर से निकले। सहाबा अहले बैत ने इन बोलों को लिया और अहले बैत सहाबा के बाद ताबईन ने, उनके बाद तबा ताबईन ने, फिर तबा ताबईन के बाद मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, अकाबरीन और सुलहा, औलिया, सालिहीन ने। ये सब तजर्बे करते 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 आज तकरीबन 14.5 सदियां हो गई, 14.5 सदियां हो गई। इस वक्त 1339 हिजरी है, हाँ जी 39 हिजरी है, और 10 साल मक्की जिंदगी के लगाए, 13 साल मक्की जिंदगी के 13 साल थे ना, 13 साल थे, 10 साल थे, ठीक। अब 10 साल वो लगाए, 39 और 10 49, तकरीबन 1.5 सदी हो गई है। इस आयत के कमालात, आयत की बरकत उम्मत पे खुलते 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 1500 साल के करीब तकरीबन ये हो गए हैं। और जिसने भी 1500 साल में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग आए, पाते पाते सुर्ख रूह होके इस आयत की वजह से इस दुनिया से रुखसत हुए। कोई शख्स जिसने इस आयत को पढ़ा हो और वह खाली गया हो, मुमकिन नहीं है। आज के बाद इफ्तारी के वक्त बहुत दुआएं मांगे, सारी दुआएं मांगे। इस आयत को 11 दफा अपने लिए, उम्मत के लिए, नस्लों के लिए, इंसानियत के लिए, आलम के लिए और क़यामत तक अपनी आने वाली नस्लों के लिए अगर पढ़ लें, कौन सा मुश्किल है। कबूलियत की घड़ी है, याद रखना। एक रोजा खत्म हो गया, दूसरा रोजा शुरू हुआ और यूं रोजे लिपटते चले जाएंगे। पहला अशरा गया और दूसरा गया और तीसरा आ जाएगा। ख्याल करना, एक एक लम्हे को हमने कैश करना है, जो मयस्सर है उसको मुअस्सर बनाना है। रमजान के दिन मयस्सर, उसको मुअस्सर, और एक एक लम्हे को हमने कैश करना है। कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा हम उसको कैश नहीं करेंगे। और उस पे इफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त अल्लाह तब नफिल की तौफीक दे दे, नफिल की तौफीक दे दे। हत्ता के नफिल पढ़ते हुए दस्तरखान पे बैठे और दस्तरखान पे अभी खाना लगा नहीं, देर है या खाना आया है, तो खाने के दौरान भी 11 बार ये आयत पढ़ना कोई मुश्किल है? हैं? मुश्किल है? नहीं है। और पढ़ते हुए अल्लाह से बातें भी हों, पढ़ते हुए बातें भी हों कि मौला ये आयत पढ़ रहा हूं, मुझे सबसे पहले रिज़्क़ रूहानी देते। अल्लाह अकबर। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान होगा जो पहले अल्लाह से अल्लाह को मांगेगा। इलाही कुछ तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। खुशकिस्मत इंसान होगा जो अल्लाह से अल्लाह मांगेगा। मौला
सारी जिंदगी बस ऐसे दुनिया के निज़ाम में चलते चलते आखिरकार बेनाम हो जाऊंगा। मैं कल आ रहा था जेल रोड से, यहाँ से, तो जेल रोड में जब जहाँ से गाड़ी गुजरी, मैंने कहा यहाँ नीचे सारी कब्रें हैं। ये जेल रोड सुकड़ते सुकड़ते कब्रिस्तान हटता गया। आंखों के सामने पिछले से पिछले साल यहाँ से कब्रों को सामने खत्म किया, मिट्टी डाली और कब्रिस्तान पीछे हो गया। निशान हमारे खत्म हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं, दुनिया में निशान खत्म हो जाए लेकिन अल्लाह की बारगाह में नाम खत्म ना हो। और अगर नाम बनाना है, ये आयत है, कुरान है, दुआएं हैं, इसके अल्लाह के जरिए इसके जरिए अल्लाह के खजानों से हम मांगें। खाने के वक्त मांगें, पीने के वक्त मांगें, सहरी के वक्त मांगें, इफ्तारी के वक्त मांगें कि मौला तेरी खजाने में कमी नहीं, तू इन आयात की बरकत से मुझे रिज़्क़ दे दे, मौला सेहत दे दे, मौला इज्जत दे दे, करीम आफियत दे दे, अल्लाह मेरी नस्लों को भूखा प्यासा ना रखना, मौला आज तो मेरे ऊपर तवंगरी है, या इतना है कि मैं खुशहाल हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, मौला मुझे खबर नहीं है, एक वक्त ऐसा ना हो कि मैं तेरे सामने हाथ फैलाने वाले बन। को 3-4 साल पहले की बात है, मैं घर बैठा रो रहा था। मेरी बीवी ने आके पूछा क्या खैरियत तो है, क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा ये मेरा बेटा खड़ा है ना, सिर्फ इसी की उम्र का और तकरीबन इसी की शक्ल का मिलता जुलता। मैंने एक बच्चा देखा है जो बाप के साथ गाड़ियों में मांग रहा था, बूढ़ा बाप था, उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और मांग रहा था गाड़ियों में, और मैं खामोश, मेरी आंखों टप टप आंसू गिर रहे थे। और मुझे दूसरा इस तरह का वाकया याद आया कि कराची में डिफेंस में मैंने कुछ अरसा प्रैक्टिस की, मरीज देखे। वहां मैं घर में जब गया तो किचन अक्सर उनके ना, यहाँ जो डिफेंस के बड़े मकान हैं उसके लिए पीछे गली होती है, उस पे भी किचन का दरवाजा खुलता है, पीछे गैलरी होती है ना मकान के चारों तरफ। उस मैंने देखा सामने तो एक नौजवान बच्चा इसी तरह की उम्र का बैठा, शापर में बचा हुआ सालन और बचे हुए टुकड़े खा रहा, शापर में खा रहा कि ये खा के ना शापर फेंक देना, और वो खा रहा। और मैंने अपनी बेगम से कहा मुझे खबर नहीं है इसके तकदीर और मुकद्दर में तवंगरी है या फकीरी है। बगदाद के पुल के कोने में एक शख्स खड़ा था और कह रहा था, लोगों मैं खलीफा बगदाद का बेटा हूँ जो गुज़श्ता से गुज़श्ता खलीफा बगदाद था। लोगों मैं फ़क्र और फाके में आ गया हूँ, क्या है कोई ऐसा शख्स जो मुझ पे तरस खाए और आज की रोटी का मुझे कुछ निज़ाम बना दे। वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। अपनी नस्लों के लिए मांगे कि मौला मेरी नस्लों को फ़क्र गुर्बत तंगदस्ती से बचा, ऐसी फ़क्र और गुर्बत तंगदस्ती से बचा कि मेरी नस्लें ईमान बेचने पे और खुदा ना खास्ता इज्जतों को नीलाम करने पे मजबूर हो जाए। मुझे एक बंदा आया, आके मेरे सामने रो पड़ा, मुझे कहने लगा कर्जे में बेटी दे आया हूँ। ये अल्फाज कहे, कह रहे अब वो नहीं है, उसके कपड़ों से लिपट लिपट के रोता हूँ, कर्जे थे। उन्होंने कहा बेटी जवान है, हसीन और जमील है, कर्जे में यही दे दे, हमारे साथ निकाह कर दे। हम कहने लगे निकाह तो करना ही था, पर कर्जे में निकाह, ये मेरी जान मेरी कब्र से कभी नहीं उतरेगा, मेरी हड्डियां भी इससे सख्ती रहेंगी कि मैं अपनी वो बेटी जिसको आंखों का आंसू, आंखों के पलक समझ के मैंने पाला, मैं उसको कर्जे में दे आया। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शका व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसर व अऊज़ु बिका मिन जुब्न वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन। मौला दैन का गलबा, कर्ज का गलबा, व कहरुर रिजाल, वो ऐसा शख्स मुसल्लत हो जाए जिसके दिल में तरस और रहम का ज़र्रा ही ना हो। अपनी नस्लों के लिए मांगे, फक्र, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती, मौला उनको तू, मैं नहीं कहता मौला मेरी नस्लों को दुनिया का आखिरी मालदार बना, पर ऐसा कर देना कि किसी वक्त का भिखारी ना मांगता ना मौला, और इतना माल इतना रिस्क दे देना सही उसकी खुददारी भी बाकी रहे, उसकी खुददारी भी बाकी रहे, उसका फक्र भी खत्म ना हो, और उसका कहीं ऐसा ना हो इस माल के छीनने से उसका ईमान न चला जाए। ये आयत है, कुरान का ये बोल है, और मुकद्दस मुअत्तर मुतहहर मुनव्वर ये बोल हैं। इस बोल में अपने आप को
اس رمضان میں سنبھال اور لے کر چلیں، اور اس بول کے ذریعے اللہ سے مانگیں، اس آیت کے ذریعے 11 بار ساری ہے، 11 بار ساری، بس اللہ سے مانگیں کہ مولا تو اپنے غیب کے خزانے سے، ان بولوں کی برکت سے مجھے دنیا آخرت کے سارے خزانے اور خاص طور پہ رزق روحانی عطا فرما۔ اور مولا تو نے مجھے دنیا کی ساری دولتیں دے دی، حلال بھی دے دی، پر مولا تم نے مجھے اپنی راہیں نہ دی، اپنی محبتیں نہ دی، جو مولا بعض اوقات تو ناراض ہو کے، مولا بعض اوقات تو ناراض ہو کے، مولا بعض اوقات تو ناراض ہو کے دولت اور روٹی کے لقمے نہیں چھینتا، تو ناراض ہو کے سجدے چھین لیتا ہے، اپنی ذات کی طرف اٹھنے والے قدم چھین لیتا ہے، اپنی ذات عالی کی طرف اٹھنے والی راہیں چھین لیتا ہے۔ مولا مجھے رزق روحانی بھی عطا فرما اور رزق جسمانی بھی عطا فرما، اور اس کے رزق روحانی اور جسمانی سے مولا مجھے دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما۔ اپنے لیے مانگیں، انسانیت کے لیے مانگیں، عالم کے لیے مانگیں۔ جب اپنے لیے انسانیت کے لیے مانگیں گے اس پہ اللہ غیب کے خزانے سے مجھے پہلے عطا فرمائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے آمین مولا پہلے اس کو دے، اس کو دے، آمین اللہ پہلے اس کو دے۔ تو امت کے لیے مانگنا ہے، انسانیت کے لیے مانگنا ہے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر فرقے، ہر مسلک، ہر مذہب کے لیے ہماری دعائیں اٹھیں اور دل سے اٹھیں، دلوں کے اندر سے نفرتیں کھرچ دیں، رواداریاں اور محبتیں ہمارے دلوں میں آ جائیں، برداشت کا جذبہ بڑھتا چلا جائے غیروں کے لیے اور اوروں کے لیے، اور اس آیت کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے اللہ کے مخلوق کے لیے مانگنے کا مزاج آ جائے، اور اپنے لیے مانگنا اور اپنی نسلوں کے لیے مانگنا یہ طبیعت میں آ جائے۔ اور وظیفہ کتنا بڑا؟ صرف 11 بار۔ تو آج جن لوگوں کو، جن اللہ والوں کو آج یاد نہیں ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ ہے، میں نے دیکھا اس میں سچی طلب ہوتی ہے نا، پاگل ہو جاتا ہے، یاد کر لیتا ہے، سچی طلب ہوتی ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، یاد کر لیتا ہے، بس پیچھے پڑ جائے، میں نے یاد کرنا ہے، اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے رزق روحانی کے دروازے بھی کھلوانے ہیں اور رزق جسمانی کی بھی دروازے انشاءاللہ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا میں نے کھلوانے ہیں۔ کھلوائیں گے نا؟ ٹھیک ہے، کوئی مشکل عمل ہے؟ بیٹھے بیٹھے فیصلے کروا لیں۔ اور وہ ایک بات کہہ دینا، دائیں بائیں نہ دیکھنا، اسی تصور میں کہہ دینا کہ فرشتوں میں نے ذکر کیا ہے، جمع ہو گئے ہو، فرشتوں وعدہ عرشی ہے کہ روزے دار کے ساتھ رہتے ہیں، جس کونے میں جس جگہ دعا مانگے قبول، اور اس کی آمین کہتے ہیں۔ فرشتوں میں نے کہا ہے میں نہیں دیکھتا، لیکن سچی خبریں دینے والے میرے مدینے والے نے فرمایا ہے، فرشتوں ذرا آمین تو کہہ دینا، اور فرشتوں آمین وہ کہہ دینا جو عرش تک ٹکرائے، اور فرشتوں مجھے پتا ہے تمہاری آمین بھی قبول، تمہارا آنا بھی قبول، کہ تم ہر جگہ نہیں آتے، دور چلے جاتے ہو، آج یہاں آئے ہو تو فرشتوں آؤ میری دعاؤں پہ آمین کہو۔ اللہ، اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے سچے دھیان، سچے جذبے کے ساتھ اور سچی کیفیت، سچے وجد اور وجدان کے ساتھ اللہ جل شانہ کا ذکر کریں گے، اور پھر مراقبے میں ڈوبیں گے۔ تصور یہ ہوگا مراقبے میں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، یہ مراقبہ ہوگا۔ اور تنہائی کے اوقات میں اس مراقبے کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ افضل الذکر لا الہ الا یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ استغفر اللہ العظیم
अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम। हमारी हाज़री को कबूल फरमा, खैर व बरकत का ज़रिया बना, राहत और रहमत का ज़रिया बना, बरकत और आफ़ियत का ज़रिया बना, बख्शिश के सारे दरवाज़े खोल दे, इताब और आज़माइश की सारे राहें बंद कर दे। बस दुनिया भी दे दे, आखिरत भी दे दे, खैरें भी दे दे और बरकतें भी दे दे। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन, आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ये आयत है ना, ये जो आयत है, 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं, उन सब को संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है। और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा, और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तसव्वुर करना है। अगर चाहते हैं कि हमेशा तवंगरी रहे, मालदारी रहे, इज्जत रहे, भरम रहे, और नस्लें पता नहीं कितनी आएंगी कोई खबर नहीं, और उनका रिस्क कुशादा रहे, कैसे होगा, किस तरह होगा? तो उसका वाहिद हल और उसका वाहिद रास्ता सिर्फ यही है। अपने मालों को सोचें, ये मेरा माल अल्लाह ने दिया है, मेरे वालिद गरीब थे, मेरा दादा गरीब था, या मेरा वालिद मालदार था, या मेरा दादा मालदार था। आज अगर उनकी जायदाद और चीजें मुझ तक पहुंची हैं तो उनके पास राज क्या था? ये जरूरी है। मेरा एक और पैगाम भी सुन लीजिएगा, ये जरूरी है कि अपनी नस्लों को फकीर और गरीब और मंगता छोड़ के नहीं जाना। जितनी इस्तेताअत हो उनके लिए उतना जायदाद, प्रॉपर्टी, माल, कोई रिस्क को छोटा सा छोड़ के जाना जरूरी है। अपनी नस्लों को खाली छोड़ के ना जाना। अगर वसाइल हैं, हलाल के रास्ते हैं, अगर नहीं हैं, कोशिश करते रहें। अल्लाह का माल अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह का निजाम अल्लाह के जिम्मे। ये आप अगर अपने पास कुछ माल रखते हैं, कुछ जायदाद रखते हैं, सोने जवाहरात रखते हैं, या कुछ चीजें रखते हैं, अगर आप रिस्क हलाल में संभाल के रखा हुआ है और साल के बाद उनकी ज़कात देते हैं और रखते हैं, तो ये हराम नहीं है, असबाब के मुआफिक है और तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। ऐसा करने से आप गुनाहगार नहीं होंगे। ढाका में एक बाजार है, उसका नाम खानम बाजार है। खानम रईस आजम था, रईस आजम, पर उसने ज़कात, उशर, हदियात, सदकात के लिए अपना माल महफूज न कर सका। बहुत रईस था। उसके बारे में था कि 40 दिन तक अगर घोड़ी दिन रात दौड़ती रहे, घोड़ा दौड़ता रहे तेज रफ्तार, उसकी जागीर खत्म नहीं होगी। 40 दिन 40 रातें, 40 दिन 40 रातें खत्म नहीं होगी। बाप के मरने के बाद बेटी को एक चस्का पड़ गया। वो था कपड़े के फाड़ने की आवाज। कपड़ा ना फटता है तो उसकी एक आवाज होती है, बस उसको आवाज अच्छी लगती थी। थानों के थान आते थे, वो सारा दिन कीमती बोसकी के, करंडी के और कीमती कपड़े फाड़ती थी, उसको टुकड़े करती थी। उसका मशगला था। और बेटे को मशगला ये पड़ गया, उस वक्त नई नई दिया सलाई आई थी, ये माचिस की डिबिया, तीलियां, वो माचिस की डिबियां और तीलियां जलाता था। उसका बारूद की बो उसे अच्छी लगती। बारूद होते ना, वो बारूद लगा हुआ था, तो 2 बारूद आपस में टकराते हैं, शोला निकलता है, उससे से बू भी निकलती है, उसको बू अच्छी लगती थी। एक वक्त आया कि वो खाली हो। और खानम फारसी का लफ्ज असल में, वो एक उस गली बाजार के चौराहे में खड़ी होती थी एक जगह और भीख मांगती थी, और उसके नाम पे खुद बाजार का नाम खानम बाजार पड़ गया। मैं झंग में गया, पुरानी बात है, हमारे एक मुखलिस है उनके यहाँ, एक चौक में खड़ा था, तो वो चौक से उनकी गाड़ी लेने आई कि आगे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे कहने लगे आप मेरी गाड़ी में बैठ जाए। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। मुझसे कहने लगे ये जो चौक है ना, फलां, मैं नाम नहीं लेता, फलां, उसकी इतनी जागीर थी कि 3 दिन 3 रातें घोड़ी दौड़ती रहती थी, खत्म नहीं होती थी। और फिर उनकी नस्लों में कोई ऐसा आया और खुद उसको कोई ऐसी चीज पड़ गई कि एक वक्त था इसी चौक पे खड़े होकर भीख मांगता। और एक दफा सख्त सर्दी थी, भीख मांग रहा था, सर्दी में ठिठर गया, और ठिठर के तो मैं
छुप गए, जैसे आजकल सर्दी है, रात को वहीं मर के पड़ा था, सुबह उठाया, कुछ लोगों ने चंदा करके कफन दे के दफन कर। मेरे हुजूर का फरमान है, अपने मालों को ज़कात के जरिए महफूज करो, महफूज कर लो। अगर महफूज ना किया, नस्लों में फक्र और फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, फकीरी और मंगता होना नस्लों को देखे जाएंगे। हाँ, फिर नस्लें कहेंगी, पिदरम सुल्तान बुत, हमारा बाप, हमारा दादा बादशाह था, जागीरदार था, मालदार था, हमारे बड़े बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं। जिंदगी भर के लिए फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती से बचे रहेंगे। गैब से अल्लाह का निजाम ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। अल्लाह सारे भूखे होंगे, सारे प्यासे होंगे, सारे फकीर होंगे, सारे मंगते होंगे। अल्लाह तुझे खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, सुलाएगा भी सही। इज्जत के तकिए, इज्जत के लुक़मे, इज्जत के जाम, इज्जत के जाम। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा हदिया लेके आया। अल्लाह के वली थे, हदिया कबूल फरमाए। आप कबूल फरमा लेते थे, किसी का नहीं करते थे। मैं नहीं लेता, तेरा रिस्क हलाल नहीं है, देख के फरमा दी। तेरा रिस्क हलाल नहीं, देख के फरमाया, तेरा रिस्क हलाल नहीं। उन्हें हुजूर हलाल है, फरमाया नहीं है। तो अच्छा, फरमाया ऐसा कर, ये रिस्क ले जा जो मुझे हदिया देता है, तुझे सबसे ज्यादा जो मुस्तहिक जरूरतमंद मिले उसको दे। देने के बाद फिर उसका पीछा कर। वो इन पैसों से करता क्या है? अब मुर्शिद का हुक्म था, फरमान था, किया। देखा तो एक लूला, लंगड़ा, अपाहज, माजूर, अंधा, काना, कपड़े खस्ता हाल, बिल्कुल बेबस और भीख मांग रहा है। इसका दिल नरम हुआ और कहा कि इससे बड़ा जरूरतमंद फिर कोई नहीं। उसको जाके माल दिया, पीछा किया। चलते 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 उसने जाके ना आगे गया तो ना वो लूला था, ना वो लंगड़ा था, ना वो कंधा था, काना था, ना वो अंधा था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। और ये हैरत से देख रहा है। करते करते जाके उसने उन पैसों से हराम काम किया। खामोशी से आ गए, आपका फरमान ठीक है, मैं अब ये मेरे पैसे ले, ये जाके ना किसी ऐसे बंदे को दे जो तुझे सबसे ज्यादा मालदार नजर आता हो, खुशहाल नजर आता हो, बेहतरीन नजर आता हो। अब पैसे ले लिए। अब देखा तो एक साहब है, बड़े कीमती घोड़े पे, लाजवाब पोशाक है और बहुत अच्छी हालत है उनकी, बहुत अच्छी हालत। सोचा कि हजरत ने फरमाया था कि सबसे ज्यादा खुशहाल को देना है। उसको जाके पैसे दिए, उसने ले लिए। अब उसका पीछा किया, वो ऐसी दुकान पे गया जहां से राशन लिया जाता है। उसने थोड़ा थोड़ा राशन लिया, हैरान हो गए, इतना मालदार आदमी है, ऐसे राशन ले रहा है जैसे कोई बंदा रोज की आए रोज की खाए, इतना जरूरतमंद। उसका पीछा किया। पुरानी हवेली थी, पुराना महल नुमा एक घर था, टूटा फूटा। उसका जाके दरवाजा खटखटाया। अभी अंदर जाने ही लगा था तो इसने लगाम पकड़ ली। उसने देखा तो है तो वही जिसने आज मेरी मदद की है। कहा तुझे अल्लाह का वास्ता है, अब मुझे अपने हालात बता दे। तो कहने लगा तूने जिसका वास्ता दिया है और फिर तूने मेरी आज मदद की है, मैंने आज तक अपने हालात किसी को नहीं बताया। मैं रईस आजम था। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई और फक्र, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती खत्म, हर चीज खत्म हो गई। कई दिनों से मैं भी भूखा हूँ, मेरा घोड़ा भी भूखा है और ये मैंने कपड़े संभाल के रखे हुए हैं। ये एक लिबास है रखा हुआ है, बाहर इसी लिबास में निकलता हूँ, किसी को ये शक न पड़ जाए ये भूखा है, ये फक्र की हालत में है, ये गुर्बत की हालत में। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खोले। गौर से समझे, मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खोले। मैं ऐसा हाल बनाऊं लोग मुझे सवाली समझें, कि कुछ लोग जुबान से सवाली नहीं होते। मेरे आका का फरमान है, अपनी बीमारियों का सदके के जरिए इलाज करो। और सदका, ये सारा वाकया सुनाने का मकसद, तलाश करो, ज़कात तलाश करो, किसको देनी है, कौन जरूरतमंद है, कौन ऐसा है जिसको बज़ाहिर लोग मालदार समझते हैं, अंदर से खाली है, खोखला है। हुआ ये, एक खैर के काम के लिए पैसे जमा करने थे, खैर के काम के। उस वक्त 24,000 था, बहुत बड़ी रकम थी। 24,000 मुझे चाहिए था। तो कहने लगे कि मैंने सोच के कहां से ले आऊं, है नहीं, रोज कमाता हूं, बच्चों ठीक हैं, घर पल रहा, दूध लाता हूं, बेचता हूं, एक निजाम है मेरी, सर्दी गर्मी बारिश तूफान की तरतीब चल रही है, कहां से लाऊं। तो कहने लगे ख्याल आया ये मोटरसाइकिल न बेच दूं। फौरन उठा, मोटरसाइकिल ले गया। गालिबन मुझे बताया कि 28,000 का ये यामा मोटरसाइकिल बिका। और बेचने के बाद मैंने उठा के सारे पैसे 24 उधर दे दिए, बाकी रख लिए। अब खाली होके बैठ के फिर मुसल्ला बिछा के अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। और मांगते मांगते आलम यह हुआ कि मैं फकीर हो गया। अल्लाह ने मुझे 4 दिन आजमाया। उसने अल्फाज जो इस्तेमाल किए ना,
पंजाबी का लफ्ज वो अल्लाह ने ना 4 दिन मनो दब के रखे। हाँ, लाहौर की पंजाबी और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है। फैसलाबाद की पंजाबी खालिस सिखों वाली पंजाबी है, लाहौर की पंजाबी में बड़ा फर्क है। दब के रखे, थोड़ा सा आजमाइश आती है, अल्लाह देखता है कच्चा है या पक्का है। कहा बस उसके बाद मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह तारिक बिन जियाद ने सारी कश्तियां जला दी थी और कहा कहो अब बताओ अपनी फौजों को कहां भागोगे, इधर भी मौत है इधर भी मौत है, फिर लड़ते लड़ते मर जाओ, पीछे समंदर की मौत ठीक और आगे दुश्मन की मौत है, कश्तियां सारी आग लगवा दी, आप करो बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करो। अल्लाह ने सारा निजाम फतह दे दी, कामयाबी दे दी और कहा फिर अल्लाह ने मेरे लिए जो दरवाजे रिस्क के खोले हैं, अब मुझे कोई भी चीज जरूरत होती है मैं घर की चीज बेच देता हूं और बेच के अल्लाह के खजानों में देता हूं बगैर सवाल के। उसके अल्फाज हैं, क्या अल्फाज है? बगैर सवाल के अल्लाह मुझ पे रिस्क के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह मेरी जरूरतें पूरी कर देता है, अल्लाह ने मुझे खुशहाली दी है। और मुझे कहने लगे सारे गुर मुझे हाजी साहब ने बताए थे, अल्लाह से लेने के सारे गुर ये मुझे हाजी साहब ने बताए थे। तो आपको एक लफ्ज कह रहा हूं, जिसको भी देखेंगे कि उसकी नस्ल दर नस्ल दसर दर नस्ल रिस्क के दरवाजे हैं तो वो खुलेंगे सिर्फ देने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे कभी नहीं खुलेंगे, वरना रिस्क आजकल के मॉडर्न जुए में चला जाएगा। आजकल के मॉडर्न जुए आए हुए हैं। अपने रिस्क को मेरे आका का फरमान है और बीमारियों का इलाज सदकों से करें, और सदके से मुराद सिर्फ बकरा नहीं, सदके से मुराद सिर्फ सिरिया नहीं, सदके से मुराद काले मूंग नहीं, सदके से मुराद तेल सुइयां नहीं, सदके से मुराद ये मैं मुख्तलिफ आपको तक अंदाज बता रहा हूं। यहाँ LOS है लाहौर के साथ, ये पहले नहीं बना था, नाला था, नाले के इधर एक समनाबाद की तरफ सड़क जा रही है, पुरानी बात है। वहां कुछ बंदे ने किताबें लगाई हुई थी, बंदे ने किताबें लगाई, मैं किताबें देख के तो आ गया, फिर दिल में आया कि जरूरतमंद है। हमारे एक मुखलिस हैं, हमारे दोस्त फैसल शमसी, मैंने उनको बड़ा नोट दिए, मैंने कहा जाके ना उसको किस तरह रख के फिर चला जाता, क्योंकि मुझे लगता है वह खुददार आदमी नहीं लेगा। और उन्होंने ऐसा किया। सोचें कि मेरे माल अल्लाह ने दिए है, क्या मैं अपने माल का सदका अगर निकाल रहा हूं तो वो दे कहां रहा हूं? जरूरतमंद क्या मैं तलाश कर रहा हूं? और मैं जरूरतमंदों में सबसे पहले वबिजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील, मुसाफिर परदेसी चौथे, फिर मस्कीन है, परदेसी है, मुसाफिर है, यतीम है। जरूरत है इस चीज की, इसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ जितने मांगने वाले हैं उनके बारे में सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा, ये लफ्ज आप पक्का रख लें, ये सब ख्वाहिशात के मांगने वाले हैं, जरूरियात वाले नहीं हैं। ख्वाहिशात, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी सवारी, फलां ब्रांड का मोबाइल, फलां चीज फलां चीज फलां चीज, ये ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है। ये लफ्ज भी ज़हन नशीन रखिएगा, मेरे साथ बोलें, ख्वाहिशात की, जरूरियात की हद है, ख्वाहिशात की हद नहीं है। आजिज़ाना दुआओं के जरिए अगर अपनी मुसीबतें, अपनी बलाएं, अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफें टलवाना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारे साथ कौन सी दुआएं हो? आजिज़ाना दुआएं, आजिज़ाना दुआएं। और मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दुआएं मांगते थे और उनकी दुआओं के अंदर जो दर्द होता था और गम होता था और उनकी दुआओं के अंदर जो किलबिलाना और बिलबिलाना और कर्ब और तकलीफ होती थी, फरमाया हंसते अपनी हंसियां भूल जाते थे, सोने वाले सोना तर्क कर देते थे, ऊँगने वाले ऊँगना छोड़ देते थे और वो भी उनके साथ रोने लग जाते थे। उनका रोना ही इतना था, वो हंसदियां तो बख्शी बख्शवाई थी। और उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन, नाम तो उनका अली है, ज़ैनुल आबिदीन पड़ा इसलिए इबादत करते 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 वह इबादत गारों के इमाम बन गए। ये तस्बीह खाना जो आपको रास्ते दे रहा है, तस्बीह खाना जो मंजिलें दे रहा है, ये रास्ता, ये मंजिल सारी के सारी इसलिए है, इस मंजिल और रास्ते के पीछे दुआओं की ताकत है, दुआओं की ताकत। इन दुआओं और अमाल को अपने साथ ऐसे सीने से लगा लें। इन दुआओं और अमाल के अंदर हैरत अंगेज दुनिया है। जब से तस्बीह खाने के साथ निस्बत है, दुआओं की क्या क्या ताकतें देखी, दुआओं की क्या क्या तासीर देखी, सुनूंगा नहीं, बस सिर्फ दिल में सोचें, मेरे सवालों का जवाब दिल में दें। दुआओं को कैसे आजमाया, खुद ही तो कहते हैं फला वजीफा पढ़ा ये होगा, फला अमल की, ये दुआएं तो हैं, सारी क्या हैं? सारी मेरी हदीस से, मेरे आका का फरमान दुआएं, सारा कुरान दुआएं, सारी तस्बीहां दुआएं और सारे दिल से गिड़गिड़ाने वाले लफ्ज वो जिस जुबान में भी हो, जिस कलाम में भी हो, वो सब दुआएं हैं। अल्लाह को ये मांगना पसंद है। अल्लाह कहता है फिर वो मुसीबतें जो खजूर के दरख्तों से नीचे आ चुकी होती हैं, मैं उन खजूरों को भी, उन दरख्तों को भी, उन मुसीबतों को भी टाल देता हूँ, और वो मुसीबतें जो तेरी आंखें ने देख चुकी हैं
ان کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ بلائیں آفات جو زندگی میں تیرے سامنے ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ یہ ساری بلائیں اور آفات اور یہ ساری تکلیفیں میں اس وقت ٹال دیتا ہوں جب تیری دعاؤں کی طاقت تیرے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں کی ایک طاقت ہے، دعاؤں کی ایک تاثیر ہے، دعاؤں کا ایک حصار ہے، دعاؤں کا ایک کوٹ ہے، اور دعاؤں کا ایک قلعہ ہے، اور دعائیں ایک ڈیفنس وال ہیں، اور دعائیں حفاظت کا نظام ہے، اور دعاؤں سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں ایسے ٹل جاتی۔ کیوں کہتے ہیں کسی کی دعا میرے کام آ گئی؟ کیوں کہتے ہیں دعا کی وجہ سے بندہ بچ گیا؟ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو بس دعا ہی تھی جس نے میرا ساتھ دے دیا، بس دعا ہی تھی جس نے میرا ساتھ دیا؟ دعاؤں میں وقت زیادہ لگا ہے۔ میں رات ہی کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، میں نے ان سے کہا دیکھو، نیک جنات کو اعمال کا ہدیہ دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ساری زندگی آپ پہ جادو نہ ہو، آج ایک گر بتا رہا ہوں، سن لیں غور سے۔ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی آپ پہ جادو، جنات، نظر بد، اثرات، گندی چیزیں، سفلی عمل نہ ہو، نیک جنات کو اعمال کا ہدیہ دو۔ دیکھیں، انسانوں کو تو ہم مال کا ہدیہ دے سکتے ہیں کیوں انسان نظر آتے ہیں، انسانوں کو بھی اعمال کا ہدیہ دیں، محبتیں بڑھیں گی، تعلق بڑھے گا، اللہ خیر ایک دوسرے کے سامنے سوچائے گا۔ اور نیک جنات کو اعمال کا ہدیہ دیں۔ اتنے لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں جنات نے آگ لگاتے تھے، موتیں واقع ہو چکی تھیں۔ اس دن میرے پاس کیس آیا، کہنے لگے آٹا گھر کا پڑا ہے، اس میں سے سوئیاں نکلتی ہیں، اور گھر کے افراد ہم ہی ہیں، کوئی نہیں ہے، اور صندوق تالے میں لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی ہمارے پاس ہے، الماری میں تالا، چابی ہمارے پاس ہے، وہیں پڑے پڑے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، یا ایسے کوئی کاٹتا ہے جیسے 4-5 ٹہنی پڑی ہوتی کپڑے کی، نیچے تک سارے کٹے ہوئے۔ اس سے بھی کہیں اور زیادہ خطرناک اور شرمناک حالات ہیں جنات کی طرف سے، خطرناک بھی شرمناک بھی۔ کئی لوگوں کو میں نے کہا جنات کو ہدیہ دیں، جنات کو اعمال کا ہدیہ دیں، اور دینا شروع کر دیں۔ ایک وقت آیا وہ جنات آ کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، جاگتے سامنے آتے تھے، یا خوابوں میں کہتے تھے ہم نے آپ کو بہت ستایا ہے، آپ کی طرف سے ہدیے اتنے ملے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ کو مزید ستائیں، آپ کو تکلیف دیں۔ حتیٰ کہ کئی گھرانے میرے پاس ایسے ہیں جن کی خود جنات سے دوستیاں ہو گئیں، اور جنات ان کے دوست بن گئے۔ اتنا ہدیہ دیا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ وہ حویلی کے جنات میرے سامنے آئے، کہنے لگے یہ لفظ پڑھا کر، جب پڑھا کرے گا ہم آ جائیں گے، جو کام کہے گا ہم کریں گے۔ اتنا میں نے انہیں ہدیہ دیا۔ میں کہ چھوڑ، جس نام اللہ کے نام کی طاقت سے وہ تیرے قریب آئے ہیں، اس اللہ کو کیوں چھوڑتا ہے؟ میں نے کہا نہ پڑھ، ہدیہ دیتا جا، کبھی یہ لفظ نہ کہے۔ اس نے لفظ کہا تھا، یہ لفظ پڑھے گا، اس لفظ کے پڑھنے سے ہم فوراً آ جائیں گے۔ کوڈ کو دے گئے، اسے کوڈ دے گئے۔ میں کہ چھوڑ، اعمال کا ہدیہ دیں۔ جنات کی دنیا ہمارے پر کھلی نہیں ہے، ہمارے پر نہیں کھلی، میرے پر بھی تھوڑی سی کھلی ہے، وہ تو پراسرار دنیا ہے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے، کھلی نہیں ہے۔ اگر کھل جائے کہ جنات کا ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے، جنات کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے، آپ نہیں سوچ سکتے ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی، اور میں ایک اور بھی عرض کروں، کبھی بھی جنات، ہمزاد، فلان چیزیں تابع کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہمارے ہاں ایک صاحب میرے ساتھ 9 سال رہے تسبیح خانے میں، جب بھی خط لکھتے تھے نا، ان کی خط کے نیچے مصیبتیں، پریشانیاں، حالات، گھر ٹوٹ گیا، بیوی چلی گئی، طلاق ہو گئی، ناکامیاں بڑھ گئیں، ماں مر گئی، باپ مر گیا، آئی تھا وہ مر گیا۔ جب بھی خط لکھتا تھا، خط کے نیچے لکھتا تھا جنات کا، ہمزاد کا دیوانہ۔ اور میں اس کو بیٹھ کے سمجھاتا تھا، چھوڑ دے، جنات کو تابع کرنا چھوڑ دے۔ کہتے نہیں، جنات ہوں گے، ان کو کہوں گا اتنا مال چاہیے، مال لے کے آئیں گے، دولت کہوں گا دولت لے کے آئیں گے، چیزیں کہوں گا چیزیں لے کے آئیں گے، فلاں کہوں گا فلاں۔ اس کو کوئی ایسا ذہن میں سوار تھا۔ 9 سال اور زندگی میں 9 سال تو قریب رہا نا، اس سے پہلے بھی آنا جانا تھا، 9 سال تو قریب رہا، بہت زیادہ۔ میں نہ سمجھا سکا، وہ جیت گیا، میں ہار گیا، لیکن اس کی جیت نہیں تھی، اس کی ہار تھی ساری۔ آج بھی حالات کی گردش میں پہلے سے زیادہ پریشان ہے، اور مجھے اس کی پریشانی میں خوشی نہیں ہے۔ ہم جنات کو ہدیہ نہیں دیتے۔ ایک عجب واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ بھی عجیب ہے۔ جنات سے حفاظت کے لیے اعمال کرتے ہیں، کبھی جنات کی حفاظت کی بھی اعمال کی، خود جنات کی حفاظت کہ آپ کے بچے محفوظ رہیں،
आपकी बेटियां बेटे महफूज रहें, आपके ऊपर कोई जादू ना हो, आपके ऊपर किसी बड़े जिन का जालिम का वार ना हो, आपकी हिफाजत हो, आपका सुख रहे, आप सुखी रहें, आप खुशहाल रहें, आप आबाद रहें, शाद रहें, दर खुले रहें, लंगर चलते रहें, सहबियां आबाद रावन, सिर दे ताजा पगड़ियां पग बाकी रहें, आपको ये मिले ये मिले। कभी ये दुआ मांगी, कभी उनके लिए ये अमल किया है? मैंने किए। देखो बात सुनो, खैर खाई कोई जिन हो या इंसान, सबको पसंद है। ये दुआएं की आपका हदिया है। मैं आपके बच्चों के लिए या हाफिज हो या सलाम की तस्वीर पढ़ रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के, अपने खानदान के लिए या हाफिज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम पढ़ रहा हूँ, ये अमल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली अमाली, करता रहा। लेकिन जब से तस्बीह खाने की निस्बत मिली और जब से तस्बीह खाने की अब तो मेरी जुबान है, और कोई पल ऐसा नहीं कि उसका नाम ना हो, उसकी याद ना हो, कलमा दरूद ना हो, जिक्र इस्तिगफार ना हो, कोई मसनून दुआ ना हो, कोई वजीफा ना हो, कोई विर्द ना हो। अब तो आलम यह है, हर पल आफत आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं। इसलिए फरमाया जब मुर्ग बांग दे तो वो दुआ पढ़ो, अल्लाह मिनी अस्सलुका मिन फज़लिका, अल्लाह अपने फजल का तुझसे सवाल करता हूँ। मेरे आका का फरमान है जब मुर्ग बांग देता है, वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, या हमारा जिंदगी का मामला है कि मुर्ग जो दोपहर को बांग देता है उसको ज़बह कर दो। एक दफा बंदे ने ज़बह कर दिया, कह लीजिए दोपहर को बांग आने आई, तो उसकी वजह से फिर मुसीबतें आती थी, उसको ज़बह कर दिया। और मैंने उसको कहा, जब फरमान सुनाया तो परेशान हो गया। मैंने कहा आका का फरमान है, मेरे कमली वाले का, सरकार ने फरमाया जब कोई अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता है, मुर्ग वो देखता है। रहमत जब भी खुलती है मुर्ग, इसलिए मैं गधे की आवाज हो, गधे की आवाज, तो उस पे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। मैं वो जिस वक्त अजाब का, बला का, मुसीबत का दरवाजा खुलता देखता है वो पढ़ता है। मुर्ग की बांग में तो अल्लाह का फजल मांगो, अल्लाह का फजल। ये पल पल की दुआएं, ये पल पल मांगना, ये पल पल के लम्हात, ये पल पल की उसके सामने, शहनशाह के सामने गिरिया जारी, अल्लाह को पसंद। फिर अल्लाह पाक मुर्ग को दिखाता है ये रहमत का दरवाजा खुला है, और रहमत जा, ये वो बंदा हर वक्त मेरा नाम लेता है, उसके घर पे बरस, उसकी नस्लों पे बरस। मौला क्या बरसों? रिस्क बरस, सेहत बरस, इज्जत बरस, शान शौकत बरस, वुसअत बरस, खैरें बरस, हिफाजतों का निजाम बरस। और अजाब का दरवाजा जब खुलता है, और जो बंदा हर वक्त जिक्र, दुआएं, तस्बीहात, आमाल, तस्बीहां नहीं करता, तो उसके ऊपर फिर अजाब, मुसीबतें बरसती हैं। एक बात और बता दूं, तो मेरे आका ने फरमाया मुसीबतों और तकलीफों, बलाओं और मुसीबतों की मौजें आई हैं, तो उनका अगर मुकाबला करना है तो ऐसी दुआओं से जिनके अंदर जारी हो, जारी हो, जारी हो। क्यों? एक बात और सुन ले, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। हम दुआएं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। दुआओं का मांगना दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, वो तेरी जो भी जुबान है, हिंदी है, सिंधी है, वो दुनिया की कोई भी जुबान है, उस जुबान को रब जाने, रब के फरिश्ते जाने, और अल्लाह उस पे मोहरें लगाता है। फिर दुआओं के साथ जारी को जोड़ें, दुआओं के साथ जारी को जोड़ें। बहुत जबरदस्त अमल है। और ये जो आज आपके लिए नक्श लाया हूँ, ये नक्श इतने जबरदस्त अमल है, इतना जबरदस्त अमल है। और ये नक्श है यारे गार और यारे मजार। और ये नक्श सिर्फ महीने में एक दफा लिखना है। आप चाहे इकट्ठे लिख के रख दें, आप चाहे इकट्ठे लिख के रख दें, आप चाहे घर में से कोई एक लिखे, जाफरान से लिखें, जर्दे के रंग से लिखें, किसी घुलने वाली स्याही से लिखें। हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को फजर से मगरिब के दरमियान किसी वक्त भी और हर हालत में ये अमल कर सकते हैं। इतने पानी में घोलें कि जिससे 3 आटे के पेड़े गूंधे जा सकें, और फिर इस पानी में 3 पेड़े का आटा गूंधें, उसकी छोटी बड़ी जो भी है गोलियां बनाएं, और गोलियां बनाते हुए क्या पढ़ना है इस पे लिखा हुआ है, और उसका आटा गूंदना है। बचा हुआ पानी परिंदों को डाल दें, और लिखा हुआ नक्श का कागज मिट्टी में दफन कर दें। नक्श की जेर जबर ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं। हर माह इस्लामी महीने की 22 तारीख को सुबह से शाम तक नक्श लिख सकते हैं, सुबह से शाम तक। और घर का हर फर्द ये नक्श अपनी तरफ से लिखे, या पूरे घर में सबकी तरफ से हो जाए तो भी इजाजत है। और घर का हर फर्द अगर लिखे तो अपना आटा और अपना पूरा अमल करे। और आटा गूंथते हुए अवल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा इखलास, ये सब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को हदिया करें, क्योंकि 22 जमाद युस्सानी आपका यौम विसाल है। और आटे की हर गोली बनाते और बेहक के अबू बकर लाजिम पढ़ें। और ये अमल खवातीन और मर्द हर हालत में कर सकते हैं। ये आटा गोलियां दरिया, समंदर, नहर, झील, छत, कब्रिस्तान, कहीं साफ जगह पे डालें, कहीं साफ जगह पे। इसकी फोटो कॉपी नहीं होगी, फायदा नहीं होगा।
फोटो कॉपी से कोई फायदा नहीं होगा। और स्याही भी घुलने वाली हो, पानी में डालें तो कागज साफ हो जाए, घुलने वाली स्याही हो। इसका हदिया लिखा हुआ है, इसका हदिया पूरे साल का 120 रुपए अगर पैसे नहीं है, वरना हर नक्श का 120, 220, 1200, 2200 जितनी तौफीक है इसका हदिया उसकी खजूरें तकसीम करनी है। इस नक्श के बारे में एक बात अर्ज कर दूं, दुनिया का खुशकिस्मत होगा जो ये नक्श लिखेगा, एतमाद से लिखेगा, यकीन से लिखेगा, दिल की गहराइयों से लिखेगा। फिर इसका आटा गूंदना है, ये पीना नहीं है, गौर से सुने, सिर्फ आटा गूंदना है। आटा गूंद के परिंदों को डाल देना है और बेजुबानों में जब जाएगा ना तो और बेजुबानों की दुआएं तेरे हक में उठेंगी, तेरे बेड़े पार हो जाएंगे, नस्लें आबाद हो जाएंगी, नस्लें खुशहाल हो जाएंगी, इज्जतों और तवंगरियों के दरवाजे खुल जाएंगे, शान शौकत के दरवाजे खुल जाएंगे। और नस्लों को इस नक्श को फैलाएं और बहुत ज्यादा फैलाएं, इस नक्श को फैलाएं और बहुत ज्यादा फैलाएं। हर फर्द आज ये फैसला कर ले कि मैंने कम से कम 1100 अफराद तक ये नक्श फैलाना है। फायदे बता के, कमालात बता के, बरकतें बता के 1100 अफराद को इंशाअल्लाह नक्श में फैलाऊंगा। आप चाहें तो 11 लाख भी फैला सकते हैं, अब तो वो दौर आ गया, ऐसे मुंह से लफ्ज निकालें पूरी दुनिया में फैल जाता है, अब तो वो दौर है। इस नक्श को फैलाएं, बहुत ताकतवर नक्श है, बहुत हैरत अंगेज नक्श है। और मुसलसल दुआ मांगे, जो किताबचा तैयार हो रहा वो जल्दी तैयार हो जाए और आपको मिल जाए। उस किताबचे के सारे अमल 22 जमातियों सानी को करने वाले होंगे और जिंदगी भर वो करते रहें, नस्लों के लिए करते रहें। नस्लें आबाद और शाद होंगी, नस्लें बामुराद होंगी और नस्लों का रिस्क, नस्लों की दौलत, नस्लों की इज्जत कभी नहीं छीनी जाएगी और नस्लों में तवंगरी दौलत और सेहत और तंदुरुस्ती इंशाअल्लाह हमेशा मिलेगी, हमेशा मिलेंगी। तो ये नक्श आपको इंशाअल्लाह मैंने दे भी दिया, इसकी इजाजत भी दे दी, इसकी इजाजत भी दे दी। अब हम अमल करते हैं। मुट्ठी के अंदर क्या डालेंगे? सरसों के बीज मुट्ठी के अंदर डालेंगे, सरसों के बीज। ये मुट्ठी के अंदर सरसों के बीज है। और पढ़ना क्या है आज आप बताएं। मैंने नीचे प्लेट रखी है, मेरे हाथ से गिर रहे हैं, मैं संभाल रहा हूं, गिर रहे हैं। छोटे छोटे बीज हैं, पर इन छोटे बीजों में बड़ी ताकत है, छोटे बीजों में बड़ी ताकत। आप अपनी थैली के अंदर ही हाथ डाल के बीज रखें, थैली के अंदर ही आपका हाथ हो और उसी में मुट्ठी में डाल लें, उसी में, नीचे ना गिराइएगा, नीचे ना गिराए, नीचे ना गिराए। और इसको मुट्ठी को देखते हुए, इस मुट्ठी को देखते हुए सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और एक गलती मुझसे हुई है पिछले दफा, ये किस सूरत की आयत है? सूरत साफात। और मैंने अपनी गलती कि मैंने सूरत नूह बताई थी, नहीं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे ये याद दहानी कराई कि ये सूरत साफात है, उसकी आयत 3 रकू में सूरत साफात है। अच्छा, तो अब हम क्या पढ़ेंगे बताएं ना अल्लाह वाले। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और बताओ, ये आयत है ना, जो आयत सुने गौर से, खवातीन का शोर खत्म हो तो फिर बात करूं। ये जो आयत है, 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं, उन सब को संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है। और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। और ये जो आपको किलो वाला अमल दिया ना, किलो वाला अमल, हवेली में पूरी दुनिया से लोग जाते हैं अमल करने के लिए। पता नहीं अल्लाह ने मेरे दिल में अचानक डाला, लेकिन तस्बीह खाने में ना ले आऊं। और तस्बीह खाने में ये कीलों का अमल, खजूर के तने का अमल, जिंदगी की रूह खजूर के तने के साथ है। हदीस में आता है, फरमान है, मफहूम है, जिस्म से जो मिट्टी बची थी, अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया था खाकी, उसमें से जो मिट्टी बची थी, अल्लाह ने उस बची हुई मिट्टी को खजूर का तना बना दिया था, खजूर का दरख्त बना दिया था उस मिट्टी, बची हुई मिट्टी से। और ये जो अमल है ये कील ठोक देता है जादूगरों में, बंदिशों में, नाकामियों में, परेशानियों में कील ठोक देता है। हमने बिल्कुल यही अमल मर्दों की तरफ रखा है, यही अमल खवातीन की तरफ रखा है। खवातीन के लिए, मर्दों के लिए सहूलत रहे। बकायदा बरामदे एक हाल के अंदर दरमियान में दीवार चुनी है, दीवार लगाई है, ग्रिल लगी थी, उसको हटा के दीवार लगाई है। और मर्दों के लिए भी और खवातीन के लिए ये कीलों का अमल है, बहुत बाकमाल अमल है। और कभी भी कीलों के लिए पैसे नहीं, इसी साइज के कील लाके देते जाएं जब भी आपका दिल चाहे। अब ये अमल हम कर रहे हैं। अब मुट्ठी में आपके हैं दाने, तो सांस रोक के पढ़ना है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा। और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए
40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू, जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तसव्वुर करना है। हर सांस में तसव्वुर करना है, और तसव्वुर करते हुए इस पे फूंक मारनी है। तो सांस रोक के पढ़ें सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। फिर सांस रोक के इस पे फूंक मारे आप हजरात, अपने हाथ पे हथेली पे फूंक मारे, और फिर मकासद, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियों का तसव्वुर करते हुए फिर सांस रोकें और फिर पढ़ें सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अब आखिरी दफा फिर हम पढ़ लेंगे, तवज्जो से पढ़ें, फिर पढ़ें। बस अब वापस दाने आप अपनी थैली, शापर, जिसमें भी वापस डाल दें। जिंदगी भर के लिए लाजवाब अमल है, बहुत कमाल अमल है।